السلام علیکم دوستو، یہ آدمی جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا وجود نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، کیا جوابات دیے ہیں اس آدمی کو مطمئن کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ذاکر بھائی، میرا نام تشار شہا ہے۔ میں جین گجراتی ہوں سر۔ میں سول انجینئر ہوں، کامرس گریجویٹ ہوں اور MBA کی ڈگری ہولڈ کرتا ہوں اور پونا میں ایز اے پروموٹر بلڈر کام کرتا ہوں سر۔ مجھے آپ کے بارے میں ہمارے ایک مسلم فرینڈ کے تھرو معلوم پڑا۔ انہوں نے آپ کا ایک CD مجھے دیا جو کہ ویج اور نان ویج کے اوپر آپ کا ڈیبیٹ تھا سر، اور وہ آپ نے جین لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ وہ میں نے دیکھا اور مجھے بہت اچھا لگا سر، اور میں تب سے آپ کا فین ہوا تقریباً 5 سال پہلے۔ اس کے بعد مجھے آپ سے زیادہ جانکاری کیسی ملے یہ میں کھوج رہا تھا، تو مجھے QTV کے بارے میں پتہ چلا اور میں آپ کو QTV پہ دیکھنا چالو کر دیا سر۔ اس کے بعد میں تو ہماری لاٹری لگ گئی، پیس TV چالو ہوا سر۔ پیس TV تو 24 گھنٹے چلنا چالو ہوا۔ اور سر میں یہاں بریک لے کے بولنا چاہوں گا کہ جتنے بھی جین پرنسپلس ہے یا جو بھی رائٹس اور ریچول جین لوگ فالو کرتے ہیں، یہ بچپن سے لے کے آج تک میں سمجھنے میں فیل رہا ہوں سر۔ ایک بھی ان کا پرنسپل مجھے لاجیکلی ایکسیپٹ نہیں ہو رہا ہے سر۔ آن دا کانٹرری، اسلام کے جتنے بھی پرنسپل مجھے معلوم پڑے، جو کہ آپ کے تھرو معلوم پڑے، 99.99% ایکسیپٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی لاجیکلی سر۔ تو یہاں دوسری بات ایسی ہو رہی ہے کہ پیس TV کے بارے میں تھوڑا آپ کی پرمیشن سے بات کرنا چاہوں گا۔ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، کین آئی ٹاک سر؟ سوال تھوڑا مختصر کریں۔ ہاں جی، مختصر جی یہ نہیں، اصل میں کیا ہے، بہت سارے بھائی قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، بہنیں بھی ہیں، سب کو موقع دیجئے ذاکر صاحب کو سننے کا، اس لیے پلیز آپ پہلے اپنے ٹاپک پہ آ جائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر پتہ ہے مجھے، میں 3 دن سے نمبر لگا رہا ہوں، آج نمبر لگا ہے سر۔ تینوں دن کا بدلہ وصول کر رہے ہیں آپ؟ جی نہیں سر، مجھے کچھ پیس TV کے بارے میں بات کرنا ہے، مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ سر ایسا ہوا ہے کہ پیس TV سے مسلمان لوگوں کو تو بہت فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ فائدہ اسلام کے بغیر جو مذہب ہے ان کو ہوتا نظر آ رہا ہے سر۔ اس کا کارن مجھے جو دھیان میں آ رہا ہے یہ ہے کہ اس پیس TV تھرو بغیر اسلامی مذہب کی جو کتابیں ہیں اس پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے سر، اور ان لوگوں کو یہ معلومات مل رہی ہے کہ ان کے بنیادی اصول کیا ہے، ان کے پرنسپلز کیا ہے۔ اور آج جو نان مسلم لوگ ہیں ان میں ایک ہمت آ رہی ہے کہ وہ ان کے سو کالڈ دھرم گرو کو سوال پوچھنے کی طاقت رکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں یہ صحیح ہے کیا، یہ پوچھنے کی ہمت آ رہی ہے سر، اور یہ ہمت تھوڑے دن میں بہت بڑھ جائیں گی سر، اسے روکنا اب مشکل ہے۔ اب یہاں پر پرابلم یہ آتی ہے کہ پونا میں ایک ایریا میں پیس TV پوری طرح سے بند ہو چکا ہے، یہ میری کمپلینٹ ہے سر۔ یہ ہم جو ایریا میں رہتے ہیں وہاں پیس TV کافی مہینوں سے بند ہے۔ ابھی چلانے والے بھائی جو ہے یہ مسلمان ہے، اور ان کے انڈر میں جو ایریا آتا ہے وہ پورا ہی مسلم ایریا ہے سر۔ اب انہیں پرابلم کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے چینل چلانے میں۔ آستھا چینل چلا رہے، سنسکار چلا رہے ہیں، فیشن TV 24 گھنٹوں چلا رہے، ٹرین 24 گھنٹوں چلا رہے، لیکن پیس TV نہیں چل رہا ہے سر۔ ہم نے انہیں کافی ریکویسٹ کی، ای میل بھیجے، نوٹس بھیجی، پھر بھی کوئی اس میں بدلاؤ نہیں آ رہا ہے، پیس TV چل نہیں رہا ہے۔ تو مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ وہ بھائی سے بات کریں اور انہیں یہ کہے کہ پیس TV چلانے میں آپ کی پرابلم کیا ہے،
کیونکہ کل ایک بھائی نے یہ تھوڑی بات کی لیکن کھل کے بات نہیں کی. آپ نے انہیں کہا کہ آپ ایک 5-6 ہزار کی ڈش لگا دو, پیس ٹی وی چل جائے گا. سر 5-6 ہزار کی ڈش لگانے والے کی طاقت پونا میں 500 لوگ رہیں گے, 5000 لوگ رہیں گے, لیکن پونا میں بہت غریب لوگ ہیں جو کہ یہ افورڈ نہیں کر پائیں گے, اور ان کا حق ہے کہ یہ پیس ٹی وی دیکھے کر کے. تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ بھائی صاحب کا پرابلم کیا ہے وہ دیکھیں اور پیس ٹی وی چالو کرنے کے لیے ریکویسٹ کریں. اور اب میں سیدھے اپنے سوال پہ آتا ہوں. سر جیسے میں نے کہا کہ جین لوگوں کا ایک بھی پرنسپل لاجیکلی میرے سمجھ کے باہر ہے, اور اسلام کے جتنے پرنسپل میں نے سنے ہیں 99% پرنسپلز مجھے لاجیکلی ایکسیپٹ ہے. سر جو ایک پرنسپل میں تھوڑی گڑبڑاہٹ ہے وہ میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں. سر اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی تو پلیز سنبھال لینا سر مجھے. تو میرا یہ ہے کہ ایوری ہیومن بینگ از بورن وتھ فری ول, اینڈ وی آر ہیئر ٹو ٹیسٹ فار دا لائف ٹو کم ہیئر آفٹر. یہ ایک پرنسپل ہے سر, مجھے ایکسیپٹ ہے, مجھے کوئی اس میں یہ نہیں ہے. دوسرا پرنسپل ہے سر تقدیر کا, جہاں مجھے تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. تقدیر کا پرنسپل جو میں سمجھ رہا ہوں اور جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے کر کے آپ کر رہے ہو, یہ جملہ غلط ہے. آپ جو کرنے والے ہو وہ اللہ کو معلوم ہے کر کے اللہ نے لکھا ہے. آئی ہوپ آئی ایم رائٹ سر. تو سر اگر جب فری ول کا جو پرنسپل ہے تو یہ تو اس کے ساتھ ٹیلی ہو رہا ہے سر. جبکہ میں دیکھ رہا ہوں فری ول آپ جو کرنے جا رہے ہو, یعنی کہ مجھے فری ول تو ہے کرنے میں, یہ پرنسپل ٹیلی ہو رہا ہے. اب رہا پرنسپل ٹیسٹ کا. اب جب اللہ نے ہمیں یہاں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے تو آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کرنے جا رہے ہو وہ اللہ کو آلریڈی پتا ہے اور انہوں نے لکھ کے رکھا ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم آخرت تک کیا کرنے والے ہیں, یعنی سب لوگ جو ہے کیا کرنے والے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے, یہ اینڈ ریزلٹ اللہ کو پتا ہے, ایسا مجھے لگ رہا ہے. بالکل صحیح. آئی ایم گلیڈ سر, جو میں سمجھ رہا تھا صحیح سمجھ رہا تھا. اب یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ سر اگر ورلڈ کپ کرکٹ کا ریزلٹ مجھے اگر فائنل ریزلٹ معلوم ہے تو پورا ورلڈ کپ مجھے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ویری گڈ, بہت اچھا سوال. لگتا ہے کہ آپ بہت پیس ٹی وی دیکھتے ہیں. کافی دیکھتا ہوں سر. آپ نے جس طریقے سے تقدیر کو شارٹ میں کہا, یس سر, بہت کم مسلمان یہاں کہہ پائیں گے. مسلمان کو بھی یہ پرابلم ہے تقدیر کیا ہے, میچ کرنے کا کہ فری ول اینڈ تقدیر بہت کم مسلمان کہہ سکتے, اور آپ نے اتنے بڑے مجمع میں کہا. میں آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں. تھینک یو سر. آپ کا آخری سوال تھا کہ اگر اللہ کو پتا ہے. سر آئی ہیو ناٹ یٹ فنش مائی کوشچن سر, پلیز. ہاں جی ہاں جی ہاں جی سر, یہ تو ایک پارٹ تھا کوشچن کا. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اللہ کو جب اگر میں تو بنیا ہوں سر, مجھے معلوم پڑا ہے کہ اسلام ایکسیپٹ کر کے مجھے سورگ ملے گا یا نرک ملے گا, کچھ نہ کچھ تو ملنا پکا ہے. اب یہ سب کھیل میں اللہ کو کیا مل رہا ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں سر. بہت اچھا سوال. یہ دوسرا سوال ہے میرا. اور تیسرا, دونوں سوال کا جواب دوں گا, تیسرا مت پوچھیے سر. شارٹ ہے نہیں تو لوگ مجھے کہیں گے کہ میں نا انصافی. نہیں, اسی کنیکٹڈ ہے سر, اسی سے کنیکٹڈ ہے. اور صرف آؤٹ آف کیوریاسٹی پوچھ رہا ہوں. آپ دینا چاہے دے سکتے, نہیں دینا چاہے نہیں دے سکتے. سر ہمارا فیصلہ کیسا ہونے والا ہے یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ ڈوز اور ڈونٹس قرآن میں لکھے, فالو کرو, آپ کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن جو جانور اینیملز جو ہے, ایلیفینٹس, یہ جو بھی جانور ہے, ان کا فیصلہ اللہ کیسے کرنے والے یہ مجھے جاننے کی کیوریاسٹی ہے. آپ دینا چاہے دے سکتے. تینوں جواب دوں گا, مختصر سا دوں گا. آپ نے بالکل صحیح کیا تقدیر کے بارے میں. آپ پیس ٹی وی دیکھ رہے ہیں, وہاں سے معلومات صحیح ملی. آپ کے جو 3 سوالات تھے, پہلا سوال تھا اللہ جب جانتا ہے یہ سب ہونے والا ہے تو یہ کھلواڑ کیوں ہوتا ہے نا, کٹ پتلیاں. جب اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں تو ہم لوگ کیوں یہ رچا رہے ڈرامہ, ڈائریکٹ کیوں نہ مجھے جنت میں ڈالتا ہے, ڈائریکٹ کیوں نہ دوزخ میں ڈالتا ہے. بہت اچھا سوال. سب سے پہلے یہ سوال کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بولے گا اچھا یہ آدمی اچھے کام کرنے والا ہے اس کو جنت میں ڈالا, یہ آدمی برے کام کرنے والا ہے دوزخ میں ڈالا, اور ڈائریکٹ اگر دنیا میں آنے کے بلا جنت میں ڈالے گا دوزخ میں ڈالے گا, جنت میں والا تو اعتراض نہیں کرے گا, دوزخ میں ڈالے والا کہیں گا آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے, میں نے کیا گناہ کیا.
اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ لکھا ہے آخرت کے دن میں آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کیا وہ ناانصافی کر رہے, آپ کے جسم آپ کے خلاف گواہی دیں گے, آپ کے فیور میں گواہی دیں گے, آپ کے آنکھ, آپ کے ہاتھ, آپ کے ہر جسم کے انگ انگ آپ کے فیور اور خلاف میں گواہی دیں گے, آپ کے آگے سب کچھ اسپشٹ رہے گا. تو آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے, آپ کہیں گے مجھے اور ایک موقع دو. اللہ کہیں گا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے. اگر ڈائریکٹ آپ کو دوزخ میں ڈالیں گے تو آپ کہیں گے اللہ نے, مثال کے طور پہ اگر ٹیچر جانتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ آنے والا ہے, یہ اسٹوڈنٹ فیل ہونے والا ہے, اگر ڈائریکٹ بولے گا نو ٹیسٹ, آپ کو پاس کیا, آپ کو فیل کیا, پاس کرنے والا اعتراض نہیں کرے گا, فیل کرنے والا بولے گا ارے آپ نے فیل کیوں کیا مجھے, ارے آپ تو بدھو ہے آپ کو, لیکن فیل کیوں کیا, اس لیے ٹیسٹ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن آپ اس پہ اعتراض نہیں کیا آخرت میں, اس لیے ٹیسٹ لے رہا ہے. نمبر 2, اللہ کو فائدہ کیا ہے؟ اللہ کو شیطان نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندے کو بھڑکاؤں گا. چیپٹر نمبر 7 میں لکھا گیا ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو تو بھڑکا سکے گا ہی نہیں, جو میرے بندے نے اس کو بھڑکائے گا. ابلیس کہتا ہے میرے پنشمنٹ کو ڈیلے کرو, گیو می رسپائٹ. اللہ ڈیلے کر لیتا ہے. اللہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, بیسٹ کریشن. باقی کریشن ڈونٹ ہیو فری ول, انسان کو فری ول ہے, تو یہ سب سے بہترین کریشن ہے. ان کو خوشی ہو رہی کہ باقی جو لوگ ہیں, آپ کا تیسرا سوال بھی اس میں آتا ہے, جو فرشتے ان کو چوائس نہیں, جو اللہ کہتا ہے ماننا ہی پڑتا ہے. جانور کو فری ول نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ کہیں گا جانور کریں گا, فری ول نہیں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے, ایسا کریشن ہے جس کے پاس فری ول ہے, اسی لیے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں فری ول دینے کے بعد یہ انسان میری عبادت کر رہا ہے. آنسر نمبر 2. آنسر نمبر 3, یہ ٹیسٹ جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کے لیے ٹیسٹ نہیں, صرف انسان کے لیے اور جن کے لیے. جانور اگر کس نے بھی کوئی غلط کیا, ایک جانور نے دوسرے جانور کے خلاف کچھ سنگ ماری, تو آخرت کے دن پہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا. ان لوگ سورگ اور نرک میں نہیں جائیں گے. انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, سب سے اچھا کریشن ہے, صرف وہ جنت یا دوزخ میں جائیں گے. اور سوال کے پہلے جو آپ نے پوچھا تھا کہ وہ مسلم آپریٹر پیس ٹی وی نہیں دکھا رہا ہے, ہم کیا کریں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مسلمان سے زیادہ غیر مسلمان کو فائدہ ہو رہا ہے, اس لیے وہ مسلمان ٹیلی ویژن نہیں دکھا رہا ہے. اور میں کہتا ہوں نا, کچھ لوگ نام کے مسلمان رہتے, پیسے کے رہتے, وہ باقی چینل شاید انہیں پیسہ دیتے, ہم کس کو پیسہ دیتے نہیں. ہم نہ پیسے سے کسی کو خریدتے, نہ کسی کو اسلام پھیلاتے, نہ چینل کو پیسہ دیتے. گاڈ ٹی وی جو کرسچن چینل ہے انڈیا میں ہر سال 28 کروڑ روپیز ہے, 28 کروڑ صرف کیبل آپریٹرز کو پیسہ دیتی ہے. 28 کروڑ, 28 کروڑ, وہ بجٹ بھی نہیں صرف انڈیا میں دکھانے کے لیے. ہم پیس ٹی وی بولتے ہیں ہمارا امن کا ٹی وی, ہم آپ کو 1 روپیہ دیں گے نہیں. دکھانے کا دکھاؤ, نہیں دکھانے کا مت دکھاؤ. تو یہ لوگ پیسے کے پجاری, عبداللہ نے عبد الروپیہ ہے, یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی ہے میں جانتا نہیں کون ہے. اور آپ کو سجیشن, آپ کیا کیجئے, بوائیکاٹ کرو, ان کو بوائیکاٹ کرو. آپ پرچہ نکالو, جو پیس ٹی وی نہیں دکھاتا ہے ہم کیبل ٹی وی نہیں لیں گے. میں جانتا ہوں کہ بہت سے غیر مسلمان کیبل ٹی وی پہ پیس ٹی وی دکھاتے, جو کیبل ٹی وی آپریٹر, مجھے پونا سے کہا گیا ہے بہت سے غیر مسلمان دکھاتے. یہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں. ان لوگ پیس ٹی وی دیکھیں گے تو صحیح لائن پہ آئیں گے, خود بھی دیکھتے نہیں اور دوسرے لوگ کو دیکھنے نہیں دیتے. میں کیا کہتا ہوں, اگر نہیں دیکھتے آپ بلڈنگ میں, ایک بلڈنگ میں ڈش لگاؤ, ایک ڈش کا خرچہ 5,000 ہے, وائر دو, وائر کا 100 روپیہ اور یا 200 روپیہ اور 600 روپیہ اور 5,500 میں 10 لوگ دیکھ سکتے. ایک آدمی کتنا دے گا؟ 500 روپیہ. آپ جو کیبل آپریٹر کو فیس دے رہے نا 250 روپیہ 300 روپیہ, وہ بھی بند ہو جائے گا. ہمارا فری چینل ہے. 5,000 روپیہ خرچہ کرو, 1,000 روپیہ وائرنگ کے لیے, 6,000 میں 10-15 لوگ دیکھ سکتے. 600 روپیہ 300 روپیہ خرچہ آئے گا. صحیح ہے نا؟ اور میں کہتا ہوں کئی لوگ نے خود کا کیبل شروع کیے. یہ مسلمان نہیں دکھا رہا, اس کو چھوڑ دو. اور وہی مسلمان, آج میرا مینیجر کہہ رہا تھا ایک کیبل آپریٹر میں جانتا نہیں, ہمارا ٹی وی دکھاتا نہیں لیکن لائیو ٹیلی کاسٹ دکھانا چاہتا ہے. تو میرے مینیجر منصور بھائی نے کہا عجیب بات ہے,
आप हमारा केबल दिखाते नहीं, बोलते पुलिस परमिशन देती नहीं, कि आज आपको पुलिस परमिशन मिली, चुप हो गया। फिर भी मैंने कहा मैनेजर से दिखाने दो, अल्लाह उसको हिदायत दे। दिखा रहा है कि लाइव टेलीकास्ट दिखाने का है। लाइव टेलीकास्ट तो और डिफिकल्ट है, पीस टीवी पे सब एडिट होता है, यहाँ कोई गलत चीज कह दिया तो सब लोग को सुनने में आएगा। तो पीस टीवी पे 3-4 बार देखा जाता है, कुछ गलत नहीं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा है। लाइव में तो कोई भी बात कर सकता है। फिर भी मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह इस मुसलमान को हिदायत दे, और आपसे दरख्वास्त कर सकता हूं कि आप शुरू कीजिए, आपके साथ और लोग आपका साथ देंगे, और इंशाअल्लाह ऐसे लोग का केबल चैनल ही बंद हो जाएगा फिर। सर मैं कोशिश करूंगा सर। और मैं दुआ करता हूं कि आप जैसा कहा कि 5 साल से आप मेरी तकरीर सुन रहे, और आपको लगा कि आप जो कहते हैं कि धर्मों में गलत बातें होती है, और ये मेरा हमेशा कहना है, हर धर्म के ठेकेदार से कहो ये बात सबूत से पेश करो, चाहे हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो या इस्लाम हो, सबूत पेश करो, कुरान में लिखा है कि नहीं, हदीस में लिखा है कि नहीं। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आपको सही रास्ता दिखाए, और अमन का मजहब कबूल करने के लिए हिदायत दे। कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर। The question goes like this. वो पूछते हैं कि कुरान में एक जगह बोलते हैं कि हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, एंड जस्ट नाउ यू सेड, और ये क्वेश्चन वो भी बोलता है कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हर गुनाह को माफ करके जन्नत में दाखिल करेगा. So isn't it a contradiction? This is why he's asking, because I said there is no contradiction in the glorious Quran, and this has been said by Dr. Zakir Naik, and I assure you that there is no contradiction. Thank you. भाई साहब ने अपने गैर मुस्लिम का सवाल पूछा है और कहते हैं कि कुरान मजीद में लिखा है कि हर अमाल का हिसाब लिया जाएगा, और मैंने अपने तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी माफ़ कर सकता है. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? जो लोग को कुरान के बारे में इल्म नहीं है उनको गलत फहमी हो सकती है कि कॉन्ट्रडिक्शन है. जब अल्लाह ताला फरमाते हो, कई जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जर्रा भर अगर आपने नेक काम किया है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा, और जर्रा भर गलत काम किया उसका हिसाब लेगा, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो आपको माफ कर सकता है. लेकिन अल्लाह सिर्फ ऐसा नहीं चाहता है कि यह आदमी अच्छा दिखता है तो इसको माफ कर दूं, यह आदमी का शक्ल बुरी है तो उसको माफ नहीं करूंगा, यह आदमी गोरा है तो माफ करूंगा, यह आदमी काला है तो माफ नहीं करूंगा. तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला अनजस्ट होंगे. माफ करने के भी क्राइटेरिया है, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये भी फरमाता है अगर मेरा बंदा तौबा करता है तो मैं उसे माफ करूंगा. तौबा करने के शराइत है, तौबा करने के शराइत है कि अगर कोई आदमी गलत चीज करता है तो पहले उसे मानना चाहिए कि वो गलत है. नंबर 2, उस गलत काम को रोकना चाहिए. नंबर 3, उस गलत काम को फिर से नहीं दोहराना चाहिए. नंबर 4, अगर वो गलती को अंडू कर सके, उस गलती को वापस से अंडू कर सके. मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स चोरी करता है 1000 रुपया, वो वापस दे सकता है, उसे वापस देना चाहिए. तो अगर वो तौबा करता है और चारों शर्तों पे निकलता है तो अल्लाह ताला उसे माफ करेगा. उसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है. अल्लाह रहमत वाला है, अल्लाह रहीम है. इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानों को मौका देता है कि अगर आप गलती करेंगे आपको माफी मांगने का मौका दिया जाएगा. और अल्लाह ताला अगर हर इंसान की छोटी गलती पकड़े और अगर एक भी गलती को माफ नहीं करे तो अल्लाह के रसूल के हिसाब से कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा. इसीलिए हर सूरे के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है. सूरह तौबा सूरा नंबर 9 छोड़ के हर सूरे के पहले लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो रहीम और रहमत वाला है. क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला दयालु है, ही इज लविंग, ही इज मर्सीफुल, ही इज बेनिफिशिएंट. इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं. अल्लाह सुब्हाना व तआला में मौका दे रहा है तौबा करने का और सही रास्ते पे आने का. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. ख़वातीन के शोबे में कोई अगर सवाल हो गैर मुस्लिम ख़वातीन की तरफ से तो कर सकती हैं. My name is Dhanashri Sawan and I'm student of BE Computer, second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being haven't been proved, but it is not established yet. But now how since will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. मैंने सवाल पूछा है
کہ قرآن مجید اور دیگر مذاہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی جوڑی آدم اور ایو تھی. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تھے. لیکن سائنس اسے تسلیم نہیں کرتا. ہم وقت میں پھر سے واپس نہیں لوٹ سکیں گے تو کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے کہ سب سے پہلے جو جوڑی ہے وہ آدم علیہ السلام اور بیوی حوا تھے. پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے, SCIENCE, لیکن یہ کتاب ہے سائنس کی, SIGNS. یہ آیات کی کتاب ہے, یہ کتاب ہے نشانیوں کی. اور قرآن مجید میں سب سائنس کے فارمولا نہیں ہیں, لیکن قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں, اور اس 6000 میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں بات کرتی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے, تو میں کیوں قرآن مجید میں ہر بات پہ عمل کرتا ہوں. جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سائنس کے بارے میں, اگر آپ میری تقریر سنیں گے, مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے کہ 80% سائنس پروف کر چکا ہے کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن میں لکھا ہے سائنس یہ ثابت کر چکا ہے کہ 100% صحیح ہے. ابھی 20% از ایمبیگوس, جو ہمیں پتہ نہیں. اس 20% میں سے 1% ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ وہ غلط ہے. ان نون, ایمبیگوس, پتہ نہیں, تو ہم ڈالتے اسے ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں. ڈاؤٹ فل, وی ڈونٹ نو. تو میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ڈاؤٹ فل ہے, ان نون ہے, ایمبیگوس ہے, اس میں سے 0.1% بھی ثابت نہیں ہو چکا کہ غلط ہے, کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ اسے ثابت کر سکے. تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. اور اس 20% میں آتا ہے کہ پہلی جوڑی انسان کی تھی آدم علیہ السلام اور بیوی حوا. سائنس اتنی ایڈوانس نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے, لائف آفٹر ڈیتھ. آخرت کے بارے میں سائنس اتنی ایڈوانس نہیں. سائنس یہ نہیں تسلیم کرتی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے جنت اور دوزخ کا, قرآن میں ذکر ہے جن کا. سائنس اب تک اتنی ایڈوانس نہیں کہ اس کے بارے میں کہہ سکے کہ یہ صحیح ہے. تو بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی تھی 1400 سال پہلے, اکثر چیزیں سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی. لیکن آج سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد, سائنس ترقی کرنے کے بعد 80% سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ 100% صحیح ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 50 سال بعد, 100 سال بعد, 200 سال بعد سائنس یہ بھی تسلیم کریں گی کہ جنت ہے, دوزخ ہے, جن ہے, اینجل ہے, اور یہ بھی تسلیم کریں گے کہ پہلی جوڑی آدم اور بیوی حوا تھی. Appreciated the class that you gave. It had a good impact on people, as well as the preaching mood that you carried about the Supreme Lord, that is Allah, is most praiseworthy. This is what the society really needs today. But as of some things which I heard from you, there were many questions, but I'll ask one as of the formality is considered. You said that... Brother, please may I know your name, brother? Oh, sorry. I am Dilip Mishra, and I have been studying Gita and Bhagavatam and various scriptures. And I am BE Computers in profession, and I am doing software job. One of my colleagues, Majid Khan, he invited me. And basically I came to know about you when I was working with him, and we were both undergoing training. So he saw that I practiced something, and he asked me some questions, like you had already talked of Natasya Pratimasti and various other things. And I had refuted all the arguments in the sense that based on scriptures, I said that what Zakir Naik is saying is wrong. So he could not refute, counter argue my arguments. So he said that when we'll have a seminar, we will talk to Mr. Zakir Naik directly.
I said, if you allow, I can talk. I have no problem. So if you don't mind, can I ask you a question? Sure, most welcome, brother. Thank you. Now you said that actually nobody is the son of God. So I do understand that as of begetting a son, obviously nobody is directly begot as a son here. But in Bhagavad Gita, at various places it is already mentioned that Krishna is saying, Mame vansho jiva loke jiva bhutana sanatana manasasthani indriyani prakritisthani karshati. I know you are already knowing about it, but I'll just read the translation if you don't mind. It says, the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to the conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Here, the Supreme Lord Krishna is saying that you are my part and parcel. And there is one more special shlok which says that I am the father, I am the mother, I am the seed-giving father. So that is 9.17. If you want, I can just read it for you. It says, Pitahamasya jagato mata dhata pitamaha vedyam pavitram omkaram vriksam yajurevacha. I'll just read the translation. I am the father of the universe, the mother and the support and the grandsire. I am the object of knowledge and the purifier and the syllable Om. I am the Rig, the Sam and the Yajur Vedas. So here if we see that the Supreme Lord is saying, all of are my sons, I take care of them. So I do agree with your first point saying that somebody is directly begotten as a son. That can be denied. But as of spiritual part and parcels, we are surely the son of the Lord and we deserve his mercy. So I felt that this bit contradicts with what you already said. भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है. I'm sorry, I'll answer in Urdu because the program is in Urdu and I believe you can understand Hindi. MashaAllah. My Hindi is also not that good, it is simple with all the grammatical errors. भाई साहब ने सवाल पूछा है, कहा है कि उन्होंने मेरी तकरीर सुन चुकी है और कुछ बातों पे उसे एतराज़ है और उन्होंने कहा उनके दोस्त से कि जाकिर कहते नात से प्रतिमस्ती और मैं इसमें नहीं मानता हूँ, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने बोला बेशक. और उनके सवालात में उन्होंने कहा कि जब मैं कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटा नहीं जना, लेकिन उन्होंने भगवद गीता के 2 श्लोका का जिक्र किया और एक श्लोक में लिखा था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपका पिता हूँ, मैं आपका माता हूँ. तो ये सवाल करने वाले कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि खुदा बेटा नहीं जनता, गॉड कैन नॉट बिगेट अ सन, लेकिन आम सन हो सकता है. आम सन, फॉर एग्जाम्पल, if you read the Bible says in the book of Romans that all those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह का बेटा है. उस अंदाज में अगर आप कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम. हम भगवान के बच्चे हैं. मिसाल के तौर पे अगर कोई ज़ईफ इंसान अगर मुझे कहेगा या कोई नौजवान को कहता है बेटा इधर आओ, तो वो फौरन बोलेगा जी चाचा जान और आएगा. लेकिन अगर कहेगा कि आप मेरे जने हुए बेटे हैं इधर आओ, तो वो उसको एक लाफा मारेगा. बेटा मतलब सन, वो छोटा आदमी है, ही इज गिविंग रिस्पेक्ट. मिसाल के तौर पे मेरे इंट्रोडक्शन में शेख फैजुर रहमान ने कहा कि शेख दीदात ने कहा डॉक्टर जाकिर नाइक को बेटा, और फिर बेटा मतलब मैं उनकी इज्जत करता हूं, वो मेरे वालिद के समान है. लेकिन अगर वो लिखते थे कि मेरा जना हुआ बेटा, तो प्रॉब्लम है. आप समझ रहे कि नहीं? दिस इज द लैंग्वेज. तो इस तरीके से अगर आप बेटा कहते हैं और कहते हैं कि गॉड इज फादर, तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि वो हमारा पालने वाला है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा रब है, उस तरीके से आप कहते हैं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं. लेकिन इसीलिए कुरान मजीद में 99 सिफत अल्लाह ताला की, उसमें से अब जो आसान है जानबूझ के नहीं लिखा है, लेकिन रब जो और मुश्किल है, रब बोलना अब से और मुश्किल है. जान अपने सिफतों में अब को नहीं लिखा. क्यों? लोग
उससे गलत मानी ले सकते हैं, वरना फादर बोलना अच्छी बात है और हम आमतौर पे कहते हैं बेटा इधर आओ, कोई हर्ज नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं बाइबल में अगर कहते हैं कि जो लोग अल्लाह की बात मानते हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं। उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए अजीम पैगंबर थे, वो बेशक बेटे थे, लेकिन अगर कोई कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जने हुए बेटे हैं तो ऑब्जेक्शन। आप समझे ना? तो बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जने हुए बेटे हैं। एक वर्स है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 जिसमें लिखा है क्या फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गिव हिज ओनली बिगॉटन सन whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life। तो ये वर्स जो बाइबल की है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गिव हिज ओनली बिगॉटन सन whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life। ये एक ही जगह पे लिखा हुआ है begotten son। लेकिन जब आप RSV पढ़ते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द बाइबल रिवाइज्ड बाय 32 स्कॉलर्स क्रिश्चियन स्कॉलर्स ऑफ द हाईएस्ट एमिनेंस, वो लिखते हैं कि ये लफ्ज जना हुआ, ये लफ्ज बिगॉटन इंटरपोलेशन है, फैब्रिकेशन है, बनावटी है, ये बाइबल में था ही नहीं। और वो क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने ये लफ्ज को बाइबल के बाहर उठा के फेंक दिया है। इसी तरीके से आपने जो कहा कि भगवत गीता में लिखा है श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं माता हूं, मैं पिता हूं, इन कॉन्टेक्स्ट मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि खुदा हमारे वालिद है, क्यों? क्योंकि लोग को गलत फहमी हो सकती है, लेकिन अगर कोई इंसान सही कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि हम अल्लाह के बच्चे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जने हुए नहीं। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे गीता, वेद सबसे ऊंची किताब है, वेद के बाद आता है उपनिषद, उपनिषद के बाद आता है इतिहास। तो अगर आपको जानना इतिहास के अंदर महाभारत का एक हिस्सा है भगवत गीता, अगर आपको कोई शक है इसकी मानी में क्या हो सकता है, अगर 2 मानी निकलती है तो आपको जाना चाहिए वेद के पास या उपनिषद के पास। आप अगर उपनिषद पढ़ते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, उसमें लिखा है ना चदिसे कसिज जनिता ना चदीपा, जिसके मानिए उस भगवान उस खुदा का ना वालिद है ना वालदा है। He has got no superior, no father, no mother। मैं कंप्लीट करता हूं फिर मौका दूंगा। इसी तरीके से आपने कहा कि मैं ना तस्वीर प्रतिमा अस्थि को नहीं मानता हूं। क्या आप वेद को नहीं मानते? आप ये कह सकते हैं कि मैं जाकिर जो ट्रांसलेशन देता है मैं उसमें नहीं मानता हूं, तो मैं जवाब दे सकता हूं। तो आपके भगवत गीता का जवाब तो दे दिया हूं, लेकिन पहले जब आपने कहे ना तस्वीर प्रतिमा अस्थि, ये हवाला है श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, और आता है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, जहां लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा एक संस्कृत वर्ड है, अगर आप संस्कृत डिक्शनरी में जाएंगे लिखा है कि प्रतिमा के मानी है बुत, के मानी है फोटोग्राफ, के मानी है स्टैच्यू, उसके मानी है स्कल्पचर। तो जब वेद और श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं है, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो ये मानी है। अगर आपको संस्कृत नहीं पता है तो आपको जाना चाहिए संस्कृत डिक्शनरी में, और हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में अल्हम्दुलिल्लाह संस्कृत डिक्शनरी है, फिर हम कह सकते हैं कि मानी में आप मानते कि नहीं मानते। तो इसीलिए कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 में, और सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको नहीं पता है तो उससे पूछिए जो इस मैदान का माहिर है। और जो मैं कह रहा हूं आपको कई कमेंट्री दिखाऊंगा जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू पंडितों ने लिखी है। आप अगर आर्य समाज की किताब पढ़ेंगे तो जो मेरी तकरीर है वो खुद मैं अपने जहन से नहीं कहता हूं, मैं तहकीक करता हूं और हवाला भी देता हूं। वो अलग बात है कि आपको इल्म नहीं होगा संस्कृत का, इसीलिए आप इस बात में नहीं मानते। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। Yeah, I would like to continue if you don't mind. First part, what you said was that we all are sons of God. If we say that, there is no harm. And as of saying that we are begotten sons of God, that is not accepted, and that is true.
So my kind request is that when you speak, because when you said, people carry this in their mind, that anyone who says that you are sons of God, the Muslim community will oppose. So that will just create a disharmony without understanding the context. So that was my concern. Just hold on. There is never a disharmony, brother. If you say we are children of God, most Muslims will not object. They only object when a Christian says that Jesus is Son of God, peace be upon him, because we know the context. We object when you take a deity's name and say that this deity is the Son of God. Most Muslims will not object if you say that the human beings are children of God. I don't know any. So what? Because we know the context. That's the reason, brother, when you ask a question, you should realize, in general terms, son means begotten son. It is a dual meaning. When we use son, it's just in context. So therefore, we are very careful. We don't want anyone to misunderstand. हम ये नहीं चाहते कि गलत फहमी हो, इसीलिए हम जानबूझ के ये भी नहीं कहते कि हम बेटे हैं खुदा के, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा. अगर कोई गलत फहमी लेता है मेरे अल्फाज से, हम इसीलिए वी आर वेरी केयरफुल. हम जानबूझ के एहतियात लेते हैं और ऐसे अल्फाज जिससे गलत फहमी पैदा हो सकती है, खुसूसन खुदा के लिए, भगवान के लिए, हम क्या करते, तहकीक करते हैं और we are very careful that not to use this word. Hope that answers the question, brother. भाइयों की तरफ से कोई सवाल हो, गैर मुस्लिम भाइयों को तरजीह दें. मेरा नाम कैलाश माने है. मैं प्रोफेशनल से टेलीकॉम इंजीनियर हूँ. आपने कहा था कि हर रिलीजन में लिखा है कि हर बुक में लिखा है कि भगवान एक है, खुदा एक है. तो मैं ये कहना चाहता था कि इस्लाम को क्यों फॉलो करना चाहिए. माशाल्लाह, भाई साहब ने बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा, अहम सवाल, कि अगर हर मजहब, हर धर्म की किताब में लिखा है कि भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए. बहुत अच्छा सवाल. अगर हिंदुइज्म में लिखा भगवान एक है, क्रिश्चियनिटी में लिखा भगवान एक है, इस्लाम में लिखा भगवान एक है, तो मुझे इस्लामी क्यों फॉलो करना चाहिए. मैं हिंदू ही रहूंगा, मैं ईसाई रहूंगा. बहुत अच्छा सवाल है. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने तकरीर की थी चंद साल पहले 1993 में इसी कैंपस में, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कुरान और जदीद साइंस, और उसके ज़रिए मैंने ये साबित किया कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है. अगर आप इस साइंस से दूसरी मज़हब की किताबों को जांचते हैं तो बाकी मज़हब की किताब इस साइंस के टेस्ट पे नहीं उतरते हैं. लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई किताबें नाजिल की है. अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई किताबें नाजिल की. नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है कुरान मजीद में, तौराह, ज़बूर, इंजील और कुरान. तौराह वो वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की थी. ज़बूर वो वही है, वो किताब है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी. इंजील वो किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस का पीस बी अपॉन पे नाजिल की गई थी. और कुरान मजीद आखिरी किताब है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी. लेकिन कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह रअद में, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, कुल्ल अजलिन किताब, और हर दौर में हमने किताब नाजिल की है. अने अल्लाह ताला ने बहुत सी किताबें नाजिल की है, सिर्फ 4 का जिक्र है. लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुई थी वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नाजिल की गई थी और एक वक्त के लिए नाजिल की गई थी. जिस तरीके से बाइबल में लिखा है, Gospel of Matthew, chapter number 15, verse 24, Gospel of Matthew, chapter number 10, verse number 5 and 6, कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे, तो इंजील सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे. उसी तरीके से जितने भी किताबें, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या कुरान के पहले नाजिल की गई किताब, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और एक ग्रोह के लिए था. लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे. कुरान मजीद में लिखा है सूरह इब्राहिम में, सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 में, 52 में, सूरह इब्राहिम सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1 में, सूरह अज़्ज़ुमर सूरा नंबर 39 वर्स नंबर 41 में, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में, कि कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे,
कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए और सारे जहां के लिए। तो ये कहना है कि जितने भी किताबें पहले आई, अल्लाह का पैगाम एक ही था, अल्लाह एक है। अल्लाह के पैगंबर अनेक थे लेकिन उनका अहम पैगाम एक ही था कि अल्लाह एक है और हम उसी की इबादत करें। लेकिन वक्त जाने के वजह से जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई थी वो वक्त उनमें मिलावट आने लगी। और आप कोई भी स्कॉलर से पूछो, चाहे बिब्लिकल स्कॉलर पूछो, क्रिश्चियन स्कॉलर से पूछो, देयर आर सो मेनी इंटरपोलेशन इन द बाइबल में मिलावट है। अगर आप वेद के स्कॉलर से पूछेंगे वो कहेंगे वेद में मिलावट है। तो जितने भी किताबें पहले नाजिल की गई थी उनमें मिलावट है। जितने पैगंबर भेजे गए थे उनका पैगाम बदल चुका है। लेकिन एक अहम बात है कि ये किताब के अंदर मिलावट आने के बावजूद फिर भी हर मजहबी किताब में तौहीद है। हर मजहबी किताब में लिखा है कि भगवान एक है। तो मैं कहता हूं गैर मुसलमानों से और मुस्लिम से भी कि आप मान लो कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जो खुदा में मानता है उसे कोई भी एतराज नहीं होगा मानने के लिए कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। हिंदू कहेगा वे 100% खुदा की है, क्रिश्चियन कहेगा बाइबल 100% खुदा की है, मुसलमान कहेगा कुरान 100% खुदा का है। नो प्रॉब्लम। तो मैं कहता हूं जो भी चीज ये मजहब की किताबों में यकता है वो चीज पे हम अमल करें। और जब हम तहकीक करते हैं यकसानियत मिलती है कि खुदा एक है। दूसरी यकसानियत मिलती है कि सब किताबों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में, इन द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12। ये ओल्ड टेस्टामेंट है। न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14। मैं कह सकता हूं कितने हवाले बाइबल में जिसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से हम जब हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते हैं उसमें लिखा है भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10 to 27। इसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55। आप अगर पढ़ेंगे कुंटब सुक्ता अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 127 वर्स नंबर 114 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। और मैं 100 से ज्यादा हवाले दे सकता हूं सिर्फ हिंदू मजहब की किताबों में जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप अगर कल्कि पुराना पढ़ेंगे उसमें लिखा है कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी माँ का नाम लिखा है सुमति, सुमति की मानी अमन, अरबी में ट्रांसलेट करेंगे आमिना जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ का नाम था। उसमें लिखा है कि इस कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मीन्स खुदा का बंदा, ट्रांसलेट करेंगे अरबी में अब्दुल्ला, वो था नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद का। लिखा गया है कि वो पैदा होंगे ऐसे शहर में जिसका नाम है अमन जो मक्का है, वो पैदा होंगे उस ग्रोह में जो चीफ होंगे मक्का के। और आप जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में पैदा हुए थे। उसमें लिखा है कि ये कल के अवतार आखिरी पैगंबर होंगे। इसमें लिखा है कि ये कल के अवतार सारी इंसानियत के लाएंगे। इसमें लिखा है कि ये कल के अवतार के 4 करीब दोस्त होंगे, 4 खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, may Allah be pleased with them all। इस तरीके से डिटेल लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव में पैदा होंगे जो 12वीं रबी अव्वल है। उनको बशारत होंगी, सबसे पहली बशारत होंगी एक गार में, एक केव में, वो है गारे हीरा। और वो बाद में माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड और वापस आएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जाते मदीना, नॉर्थवर्ड वापस आते। मैं फुल एक तकरीर करने वाला हूँ लखनऊ में 2 हफ्ते बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मजहब की किताबों में। तो मैं आपको कहता हूं अगर आपको अच्छा हिंदू बनना है तो आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा, नात से प्रतिमा अस्थि,
उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई स्टैचू नहीं। आपको मानने पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको मानने पड़ेगा कि जो तालीमात ये आखिरी पैगंबर देंगे उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा। तो मैं कहता हूं आप अच्छा हिंदू बनो, अच्छा हिंदू बनेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, आपको अच्छा मुस्लिम बनना ही पड़ेगा। इसी तरीके से एक अच्छा क्रिश्चियन को अगर क्रिश्चियन बनना है, उसको एक खुदा में मानना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, उसे मानना पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो ऑटोमेटिकली, आपको अगर मुस्लिम नाम से नफरत है तो मुस्लिम नाम मत लो, लेकिन आप अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से चलो और आप सबसे अच्छे इंसान बनेंगे। इंशाअल्लाह जरूर अच्छा हिंदू तो बनो। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अच्छा हिंदू बन के सही मुसलमान बनना चाहते हैं कि नहीं? आज आप अगर सच्चे हिंदू है और अपने हिंदू धर्म की किताबों में अमल करना चाहते हैं, मैंने इतने हवाले दिया, तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं जानना चाहता हूं आपसे, हाँ आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है? हाँ मानता हूँ, मानते हैं कि नहीं? हाँ मानता हूँ। मानते। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ सर, आप आपने कहा मानते कि कल की अवतार आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नहीं? सर मैं अभी पढ़ूंगा। बिल्कुल सही। अब पढ़ के अगर मुतमईन होंगे तो फिर मानेंगे कि नहीं? हाँ मानेगा। कितना वक्त चाहिए आपको? एक दिन चाहिए तो कल पढ़ सकते, 2 दिन चाहिए तो परसों पढ़ सकते। एक 2 दिन 2 दिन 2 दिन। अच्छा, परसों मैं आपका इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। माइक नंबर 3, अगर वहाँ कोई नॉन मुस्लिम सिस्टर्स हों तो उनको मौका दिया जाए। जी सर मैं दीप्ति सिंह है। मुझे कुरान में की बहुत बातें अच्छी लगती है और उसमें से बहुत कुछ सीख मिलती है। तो ये ज़रूरी है कि इस्लाम कबूल करना चाहिए और इस्लाम मुझे अच्छा लगता है। बहन का सवाल है कि उन्हें कुरान मजीद पढ़ चुकी है, बहुत से बातें अच्छी लगती है, कुरान मजीद इस्लाम पसंद करती है, तो मुझे इस्लाम कबूल करना चाहिए कि नहीं? अगर आप पसंद करती है कुरान मजीद के तालीमात को और इस्लाम पसंद है तो बेशक आपको कबूल करना ही चाहिए। अगर पसंद नहीं करती तो नहीं करना चाहिए, अगर पसंद करती कबूल करना ही चाहिए। तो ही आप अमली तौर के ऊपर, सही तौर के ऊपर इस्लाम से मोहब्बत कर सकते। तो आप क्या चाहते हैं कि इस्लाम कबूल करे? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सर नहीं, आप अगर कुरान मजीद पढ़ चुके हैं और आप कहते हैं कि कुरान मजीद में जो लिखा आप उसके पसंद है, तो पसंद है तो उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। सर ये बराबर, लेकिन सर मैं आजम कैंपस में इधर 3 महीने हुए मैंने एडमिशन लिया है। तो फ्रेंड सर्कल में सब मेरे फ्रेंड सर्कल है, तो बहुत सारे मोमेडियन फ्रेंड्स हैं मेरे। तो ऐसा कुछ नहीं, पहले तो नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इधर आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके बाद सर अच्छा लगा और बहुत कुछ लाइफ में सर कुछ बहुत सीख मिलती है इससे, तो अच्छा लगता है कुरान मुझे। आप मैं सबको अगर बोलती आपके हूँ बहुत से फ्रेंड मुसलमान है, सही लफ्ज मुसलमान है, मोहम्मदन सही लफ्ज नहीं है, मुसलमान सही लफ्ज है। सॉरी सर। अगर आप आजम कैंपस में आ चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, आपके बहुत से सहेलियां अगर मुसलमान हैं, आपको अच्छा लगता है कि जो मुसलमान में चीज़ अच्छे है, तो इस्लाम में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम में कोई भी किसी को मुसलमान ज़बरदस्ती बना ही नहीं सकता, ये हराम है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो कोई भी आपको आजम कैंपस के बाहर नहीं निकालेगा। जनाब पीए इनामदार साहब भी इधर है, वो ये नहीं कहते कि आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो आजम कैंपस के बाहर निकालेंगे। और इस कैंपस में माशाअल्लाह बहुत से गैर मुसलमान भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आता है कि ये मज़हब सही मज़हब है और आप अपने पुराने किताब पढ़ते हैं, हिंदू मज़हब की किताब पढ़ते हैं, और आपके हिंदू मज़हब की किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार जो आने वाला है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको इल्म हो जाता है कि ये पैगाम कुरान में मौजूद है और अल्लाह के आखिरी रसूल के हदीस में मौजूद है, तो आप अगर अपने पुराने किताब वेद पे अमल करना चाहती है और आपको पता लग गया है कि ये पैगाम सही है, तो आपको इस पैगाम को कबूल करना चाहिए। अगर आपको वक्त चाहिए
वक्त लीजिए, 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, वो भाई को 2 दिन चाहिए, 2 महीना लीजिए, बट जब आपको इत्मीनान हो जाएगा कि ये मज़हब सही है, ये तरीका जीने का सही है, तो आपको इसको कबूल करना पड़ेगा। तो ही असली तौर पे लोग को पता चलेगा कि आप इस किताब और इस दीन से मोहब्बत करते हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो नाज़रीन किराम, आप लोगों ने ये वीडियो देख ली, यकीनन बहुत हैरान कुन वीडियो थी। एक आदमी जो अल्लाह से इनकार करता हो, डॉक्टर साहब ने जो है ना बहुत अहम जवाब दे दिए। आप खुद सोचें, आपके सामने एक गाड़ी कोई पेश कर ले, जो ऐसे गाड़ी हो जो इंसान उसे पहली दफ़ा देख रहा हो, तो ओ इंसान क्या कहेंगे? जो उसको पहली दफ़ा देख रहा हो, कोई भी हो जो इस गाड़ी को पहले नहीं देखा हो और पहली दफ़ा उसे देख रहा हो, वो क्या कहेंगे कि किसने बनाया है? यानी ये गाड़ी किसने क्रिएट की है, किसने बनाया है? तो जो है ना वो जवाब देंगे, जिसने ये गाड़ी बनाया है उसने ये गाड़ी बनाई है। यानी ये गाड़ी वजूद में कैसे आई है? यानी जिसने उसको बनाया है, जिसने उसे क्रिएट किया है, ये उसको बनाने वाला है। तो इतना बड़ा निज़ाम जो चल रहा है, सूरज, चाँद, सितारे, बारिश बरस रहा है, समंदरों का निज़ाम चल रहा है, और इतने ज़्यादा मखलूक़ात पैदा हो रहे हैं, दरिंदे चरिंदे, सब निज़ाम चल रहा है, कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा, कोई भी तब्दीली नहीं आ रही है। तो ये बनाने वाला कौन है? निज़ाम चलाने वाला कौन है? वो है एक अल्लाह, एक अल्लाह है। इतने पहाड़ बनाए हैं, इतने सितारे बनाए हैं। देखिए, घर हम बनाते हैं, ये ख़ुद बहुत नहीं बनता। गाड़ी हम बनाते, ख़ुद बहुत नहीं बनता। मोबाइल हम बनाते, ख़ुद बहुत नहीं बनता। इसके लिए बनाने वाला चाहिए। एक ज़मीन है, बंजर ज़मीन, अगर वो इस तरह वीरान हो, कोई इस पे फसल जो है ना बोने वाला ना हो, उसे तैयार करने वाला ना हो, पानी लगाने वाला ना हो, इस तरह बंजर रहेगा। लेकिन अगर उस पर मेहनत किया जाए, उसकी जो है ना ज़मीन को नरम किया जाए, इसमें पानी छोड़ दिया जाए, इसमें खाद डाल दिया जाए और इस पर मेहनत किया जाए, तो ये फसल देगा, आपको फल देगा। लेकिन अगर इसी तरह पड़ा रहे तो आपको फसल नहीं देगा। तो इतना बड़ा निज़ाम जो चल रहा है, ख़ुद बहुत कैसे चल रहे हैं, ख़ुद इंसान सोच ले, ख़ुद बहुत तो नहीं चल सकता। तो इस निज़ाम को चलाने वाला एक है, एक बनाने वाला है, निज़ाम चलाने वाला एक ज़ात मौजूद है, वो है अल्लाह। कुल हु अल्लाहु अहद, तो कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना उसने किसी को जना है, और उसका हमसर और उसका बराबर कोई नहीं है। तो देखो, इस बात को मानना पड़ेगा। ये देखो, ख़ुद इंसान सोच ले, ये कैसा हो सकता है कि इतना बड़ा निज़ाम ख़ुद बहुत चल रहा हो। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अहम जवाब दे दिए, बहुत अहम जवाब हुए, बहुत ही यानी नॉलेज वाली वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी होंगी। इस तरह के वीडियोस इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ शामिल रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।